Hello and welcome to the 31st episode of Weekly Takes. It's January the 2nd, 2021, second day of the new year. Wishing you all a very happy, healthy, prosperous and safe 2021. And as a friend put it, tomorrow again the sun will rise and shine with new rays, new excitement, new hope and with new trust. Forget the last year, not so fast, but after some learning, time that is unstoppable, unequal, which moves on without ever taking a break. Welcome 2021 with new hope, new desires, and to teach mankind a lesson for the good of all humanity. Let's just hope for the best for America and mankind. We'll start today's episode with news of USA, followed by our segment of some little known but unknown facts about New York City. Then we discuss news of India, wherein we'll have an analysis of the farmers' protest, an update on Sushant Singh Rajput murder mystery, and then we'll talk about the history of Kashmir, the heaven on earth. And last but not the least, we'll talk about the happenings within the Congress party in India and its future in the present circumstances. I thank you all for liking my program. Even the last episode again was watched by almost 17,000 viewers. More and more of you are subscribing, and those of you who have not till now pressed the subscribe button and also the bell icon to get informed about the next episode at the earliest. Let's just do it. Namaste, Sat Sri Akal, Adab. This is Jagjit bringing you the weekly takes from New York today morning when the mercury reads -1 degree Celsius. Let's begin. News of USA. After millions of votes and dozens of lawsuits, the end of the election is in sight. The final step to affirm President-elect Joe Biden's victory is next week. As told in the earlier episodes, Congress will meet Wednesday, January the 6th to formally count the votes cast by the Electoral College, 306 for Biden, 232 for President Donald Trump. Remember, it takes only 270 votes to win the White House. Members of the House of Representatives and the US Senate will meet in a joint session at 1 p.m. in the House chamber. The procedures for the session come from the Electoral Count Act of 1887. Vice President Mike Pence will preside in his role as President of the Senate. Leaders of both major parties will appoint lawmakers from both chambers to serve as tellers. Enough of the procedures. We'll deal with it in the next episode after the happenings of 6th January has already been done. Now moving over to our section of some interesting known but unknown facts about New York City. Did you know that the Metropolitan Museum of Art, MoMA, is the largest art museum in the United States and also one of the most visited art museums in the world? It was founded in 1870 by Richard Morris Hunt and others. Today, the museum is one of the world's greatest art centers. The museum showcases over 5,000 years of art from around the world. Did you know that the Hudson River flows two ways? The river flows for 315 miles and empties into the Atlantic Ocean. Because of the low and high tides, which the river usually experiences twice every 24 hours, the direction of its flow reverses. A rising tide causes the river to flow towards Troy, northwards, and a failing tide causes the river to flow seaward, southwards. The river also forms the boundary between New York and New Jersey for 21 miles. And for the answer to the question posed in the last episode, in which year was the first hospital in the country built, I received answer from two of my avid subscribers, Bobby AB and Hardev Mahida. Thank you both.
अब चलें भारत की ओर। पहले कुछ मुख्य समाचार। किसान आंदोलन अभी भी सबसे अहम समाचार है। आंदोलन का आज 39वां दिन है। चलिए जानते हैं इन डिटेल इसके कुछ और पहलुओं को। पिछले एपिसोड में हमने जिक्र किया था अड़हतिया और उनके रोल का। जानते हैं कि आखिर वो सरकार के ये 3 लॉज से क्यों नाखुश हैं, and also as to why all opposition parties are supporting this movement. Arhatiyas are commission agents, a link between farmers and buyers of their produce. They arrange for the auction and delivery of the harvested crop to the buyers. They are also money lenders with a long history in that trade. In recent years, they have emerged as input dealers as well, all of which means they wield great control over farmers in those states where their network is strong, Punjab and Haryana. The Arhatiyas are also politically powerful. They count members of the Legislative Assembly amongst their brethren. In July last year, they honored Chief Minister Amrinder Singh with the title of Fakhre-Qaum, Pride of the Community. Local media termed the event as a mega felicitation function. It came soon after the Chief Minister had said it would be difficult to waive off the debt owed by the farmers to the Arhatiyas. As many as 86% of the farmer and 80% of agricultural labor households are mired in debt, says a study done by Punjab University, Patiala, on indebtedness among farmers and agricultural laborers in rural Punjab. Giving you an example of Jodhpur village in Barnala alone, there are some 450 households. Of these, just 50 to 20 are debt free, and the debt has been rising among farmers losing land to Arhatiyas. And this is one of the reasons why the Arhatiyas don't want the law to come in. Another angle of discomfort relates to tax and GST, which will affect the Arhatiyas and corrupt people in a big way. किसान तो हमेशा आयकर और जीएसटी प्रणाली से मुक्त रहेंगे, लेकिन जो ट्रेडर्स इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को अपस्ट्रीम बेचते हैं उन्हें अब जीएसटी और इनकम टैक्स के दायरे में लाया जाएगा। इसे यहां आसानी से समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण। अगर केरल वाले नेताजी, आप समझ रहे हैं ना मैं किसकी बात कर रहा हूं, और महाराष्ट्र वाली नेतानी जी, समझिए, को अपने अंगूर और गोभी को व्यापारियों को क्रमशः 500 करोड़ में बेचना है तो उन्हें आयकर से छूट रहेगी, लेकिन उन्हें अपने इनकम टैक्स रिटर्न में जिस व्यापारी को माल बेचा उसका पैन नंबर लिखना होगा। मतलब है कि अड़हतियास को अपस्ट्रीम में माल को बेचकर अपनी आय पर 500 करोड़ रुपए और आयकर पर जीएसटी का भुगतान करना होगा। कल्पना कीजिए कि यदि कोई अंगूर और कोई गोभी ही नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार का पैसा है, तो स्वाभाविक रूप से व्यापारी नेताजी व नेतानी जी से जीएसटी और आयकर वसूल करेगा। इसलिए सभी नेताजी और नेतानी जी के साथ साथ सभी भ्रष्ट नेताओं को जो कमीशन एजेंट और दलाल हैं, उन्हें अपनी कृषि आय दिखाने के लिए अब एक बड़ी रकम का भुगतान करना होगा टैक्स और जीएसटी के रूप में। यह रकम करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में है। ईमानदार किसान जिनके पास वास्तव में कृषि उपज थी, वे इस दायरे से मुक्त रहेंगे। यही इस मामले की असली जड़ है। इसलिए सारे भ्रष्टाचारी बिलबिला रहे हैं, क्योंकि यदि यह बिल रहा तो उनके भ्रष्टाचार से कमाए खजाने में छेद हो जाएगा। लेट्स ऑल्सो लुक एट सम अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। The new agricultural laws were brought in through an ordinance in June 2020. Now, if we look at the sales of agricultural produce and its sale after this period, brings some very interesting facts. The sales of agricultural produce to the mandis dropped by almost 20 to 30% across the board in the period between June and November, compared to the same period last year. So, whom did the farmers ultimately sell? It becomes evident that they sold it outside of the mandis. This is the freedom to sell clause in action which benefited the farmers.
The opposition parties in India have been so marginalized and they are out of touch with the basic facts that they have nothing else to do but oppose each and every action of the Modi government. अब अपडेट बिहार के लाल सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड का केस शुरू हुआ। सीबीआई ने केस अपने अधीन लिया। इन माई लास्ट एपिसोड आई हैड मेंशन्ड अबाउट द मूव्स ऑफ द सीबीआई, जो एक वाटर टाइट केस बनाने में जुटी है। एवरीथिंग इज बीइंग कंसिडर्ड, ऑल कंसर्न्ड हैव बीन क्वेश्चन्ड एंड डिजिटल एविडेंस क्रिएशन के आधार पर इस केस पर काम चल रहा है। समय लगेगा पर न्याय मिलेगा। This was told by the CBI in a release very recently. Progress is being made and result will come out very soon. Have patience. अब चलें धरती के स्वर्ग कश्मीर की ओर। पिछले एपिसोड्स में हमने चर्चा की थी करकोट एवं उत्पल वंश की। अब आगे चलें। कश्मीर में के इतिहास में लिखने और जानने के लिए न जाने कितनी घटनाएं हैं और कितनी उपलब्धियां कि उनका उल्लेख करना एक छोटे से अंतराल में शायद संभव नहीं है। कश्मीर में अपने कालखंड की हर विधाओं में इतना काम हुआ है कि हर खोज, हर विद्वान ने सिर्फ कश्मीर को ही समृद्ध नहीं किया, वरना पूरे भारतवर्ष को कश्मीर का योगदान दिया है। उनमें से एक नाम आता है महामहेश्वर आचार्य अभिनव गुप्त का। आज हम उसी आचार्य अभिनव गुप्त की चर्चा एपिसोड के इस अंश में करेंगे। आचार्य अभिनव गुप्त एक ऐसे दार्शनिक, साहित्यकार, नाट्य शास्त्र के ज्ञाता, महादेव के परम भक्त, लेखक और आध्यात्मिक गुरु थे, जिन्होंने यह दिखाया कि परम चैतन्य तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ संन्यास से होकर नहीं, वरन परिवार से भी होकर जाता है। शैव मत की यह एक ऐसी अनोखी धारणा है जो सबके लिए सुलभ है। उन्होंने इसी दर्शन को पूरे भारतवर्ष को दिया। अभिनव गुप्त को जानने का अर्थ होता है कश्मीर के बारे में जो भी भ्रांतियां हैं कि हिंदू धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है और यह केवल इस्लाम या सूफी परंपरा के लिए जाना जाता है, यह धारणा जो भी अनुभव गुप्त को जानेगा वह इस कश्मीरी आचार्य को पढ़कर मंत्र मुग्ध हो जाएगा। अभिनव गुप्त दार्शनिक, रहस्यवादी, साहित्य शास्त्री, कश्मीरी शैव मत और तंत्र के प्रकांड पंडित थे। जो स्थान व्याकरण में पातंजलि और पाणिनि का है, वाचस्पति मिश्र का न्याय शास्त्र में है, वही गौरव अभिनव गुप्त को तंत्र, शैव मत और नाट्य शास्त्र और अलंकार विद्या में है। उन्होंने दर्शन शास्त्र को उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित किया और शैव मत में प्रतिभिज्ञा अर्थात सेल्फ रिकॉग्निशन और त्रिक सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। वे कोरे तार्किक नहीं थे, वरन साधना के डेप्थ को भी अच्छी तरह जानते थे कि केवल किताबी ज्ञान का ईश्वर प्राप्ति में कोई डायरेक्ट रिलेशन या सोर्स नहीं है। उन्होंने अपने हर लिखे हुए आध्यात्मिक विषय की साधना की थी। इनका आविर्भाव 11वीं सदी का माना जाता है। इनका कुल अपनी विद्वता और तांत्रिक साधना के लिए प्रसिद्ध था। आचार्य अभिनव गुप्त के पूर्वज कन्नौज के निवासी थे। कश्मीर के महाप्रतापी नरेश ललितादित्य ने जब 740 ईस्वी में कन्नौज को जीतकर उसे अपने अधीन कर लिया था, तब उन्होंने अति गुप्त से कश्मीर चलकर रहने का अनुरोध किया था। वितस्ता नदी के तट पर भगवान शीतांशु मौली शिव के मंदिर के सामने एक भव्य महल का निर्माण किया गया। इसी यशस्वी कुल में अभिनव गुप्त का जन्म 200 वर्ष के बाद हुआ। उनके पिता का नाम नरसिंह गुप्त और माता का विमला देवी था। दोनों अत्यंत विद्वान, धर्मपरायण और शिव भक्त थे। बचपन से ही अभिनव गुप्त की विलक्षण प्रतिभा दिखने लगी थी। अभिनव का तो अर्थ ही होता है नित नया। अभिनव गुप्त ने अपने नाम की सार्थकता कुछ ही वर्षों में सिद्ध कर दी, जिससे उनका चिंतन, मनन और लेखन सिर्फ उसी काल का चिंतन साबित नहीं हुआ, बल्कि उसके पूर्ववर्ती साहित्य की भी व्याख्या नए ढंग से होने लगी। ध्वनि सिद्धांत, जो आज सारे सिद्धांतों में एक प्रतिष्ठित सिद्धांत है, जिसका मूल ग्रंथ ध्वन्यालोक है, जो ललितादित्य के शासनकाल में लिखी गई थी और जिसके रचयिता आनंद बर्मन थे, उस पर अभिनव गुप्त ने एक टीका लिखी जिसका नाम लोचन टीका है। यह टीका मूल ग्रंथ से भी अधिक प्रामाणिक है। उसके बाद अभिनव गुप्त में भरत मुनि के प्रसिद्ध नाट्य शास्त्र पर एक अभूतपूर्व टीका लिखी। यह मूल ग्रंथ ईसा पूर्व 1ली शताब्दी में लिखी गई थी।
नाट्यशास्त्र भारतीय कला की पहली रचना मानी जाती है। यह टीका इतनी प्रामाणिक है कि बिना उसे पढ़े मूल ग्रंथ को नहीं समझा जा सकता है। महामहेश्वर आचार्य अभिनव गुप्त का संबंध सबसे अधिक दर्शन की जिस धारा से है उसे तंत्र कहते हैं। जो दर्शन वेद पर आधारित है उसे आगम कहते हैं और जो तंत्र पर या विनय अन्य विषयों पर आधारित होते हैं उसे निगम कहते हैं। अभिनव गुप्त की चिंतन शैली में विभिन्न धाराओं का सकारात्मक सम्मिश्रण है। इस चिंतन में आगम, निगम, शैल, शाक्त, योग, सौंदर्य, ब्रह्म और जगत सभी के लिए स्थान है। भारतीय ज्ञान की अनेक धाराएं अभिनव गुप्त के विराट ज्ञान में देखने को मिलती हैं। इनमें ज्ञान प्राप्ति की इतनी उत्कट लालसा थी कि गुरु की खोज में ये कश्मीर से जालंधर तक चले गए थे। वहां इन्होंने अर्धत्रयंबक मत के प्रधान आचार्य शंभुनाथ से कौलिक मत के सिद्धांतों का अध्ययन और साधना की। इन्होंने व्याकरण का अध्ययन अपने पिता से पर्याप्त किया। त्रिक दर्शन का अध्ययन लक्ष्मण गुप्त से, ब्रह्म विद्या भूतिराज से और नाट्य शास्त्र का अध्ययन भट्ट तोत से किया था। कुल मिलाकर इनके 20 गुरु थे। आश्चर्य है कि इतनी तीव्र रही होगी इनकी ज्ञान पिपासा, और आश्चर्य है कि कोई अपने सीमित जीवन काल में इतनी साधना कर सकता है। इन्हीं के अमिट योगदान से प्राचीन कश्मीर यानी शारदा पीठ की परंपरा समूचे भारतवर्ष में आगे बढ़ती गई। अभिनव गुप्त ने तंत्र, साहित्य और दर्शन इन 3 विषयों पर 50 से अधिक ग्रंथ लिखे हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं तंत्रालोक, तंत्रासार, तंत्रोच्चार, बोध पंचदर्शिका है। तंत्रालोक एक ऐसा ग्रंथ है जो कुल तंत्रों का विशाल विश्वकोश है, जिसमें व्यक्ति के बंधन का कारण, मोक्ष विषयक नाना उपाय, शौवाचार की विभिन्न प्रक्रियाएं प्रामाणिक उदाहरण द्वारा बताए गए हैं। इस विशाल साहित्य तंत्रालोक की हम थोड़े में चर्चा करके देखते हैं कि इसकी विषय वस्तु आखिर है क्या। तंत्रालोक को ध्यान से पढ़ने पर अभिनव गुप्त के लिखने का उद्देश्य ज्ञात होता है। तंत्रालोक महादेव के भैरव स्वरूप की प्राप्ति और उनकी साधना के लिए रचा गया है। आचार्य स्वयं लिखते हैं कि तंत्रालोक की विधियों का पालन करने वाला भैरव स्वरूप की निरंतर साधना करने वाला स्वयं भैरव स्वरूप हो जाता है। तंत्रालोक का केंद्रीय भाव अद्वैत परमेश्वर या महादेव की भाव की सिद्धि है। वे बंधन से मुक्ति के लिए इतने सजग थे कि शक्तिपात या चैतन्य की पूर्ण रूप से प्रार्थी और जागृत हो जाना तथा महादेव को समझ लेना तंत्रलोक की विषय वस्तु है। थोड़े और सरल में यही तंत्रलोक है। हम पहले भी उल्लेख कर चुके हैं कि महामहेश्वर आचार्य अभिनव गुप्त की गुरु परंपरा अनेक गुरुओं की रही है, वैसी ही इनकी शिष्य परंपरा भी है। उनके प्रमुख शिष्यों में क्षेमराज, क्षेमेंद्र एवं मधुर राज योगी हैं। उनके शिष्यों ने शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सुभट दत्त, जयरथ और भास्कर कंठ और लक्ष्मण जू यानी 18वीं सदी तक पहुंचाया। इसके बाद उस परंपरा को आगे पहुंचाने वाला कोई सुयोग्य शिष्य पैदा नहीं हुआ। अमूल्य संपदा धीरे धीरे समाज और जनता की आंखों से ओझल होती गई। अभिनव गुप्त की पांडुलिपियां आज भी दक्षिण भारत में सुरक्षित हैं। केरल में आज भी इनकी रचनाओं का अध्ययन किया जाता है। 70 वर्ष की अवस्था में इन्होंने स्वेच्छापूर्वक संसार को त्याग कर मोक्ष का मार्ग चुना। जब वे मोक्ष के लिए प्रयाण कर रहे थे तब उनके शिष्यों की संख्या 100 के बराबर थी। अपने शिष्यों के साथ चलते हुए वे गुलमर्ग के रास्ते में जो भैरव गुफा आती है उसमें प्रवेश कर गए और बाहर नहीं निकले, नहीं उनका शव प्राप्त हुआ। आज के लिए कश्मीर के इतिहास से इतना ही। अगले अंक में हम अभिनव गुप्त के शैव मत के बारे में चर्चा करेंगे। अब बात 135 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी की, मेरी पार्टी की। मेरी पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता है राहुल बाबा। दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है और पिछले दिनों यानी 28 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की स्थापना दिवस थी और राहुल बाबा मौकाए वारदात से फरार। लोगों का कहना है कि साहब घूमने या कहे तो नया साल मनाने अपने नानी के घर इटली चले गए हैं। ऐसा नहीं है। राहुल बाबा तो इटली के किसानों से बात करके भारत के किसानों की समस्या का शायद समाधान ढूंढने गए हैं। अब निश्चिंत रहें, बाबा लौटे और सारी समस्या का हल मिल जाएगा। इनका नाम पप्पू ऐसे ही नहीं है, लेकिन
मेरा मानना है कि राहुल इतने बुड़बक नहीं है जितना लोग उन्हें समझते हैं। ऐन मौके पर लापता होकर ही हैज गिवन अ मैसेज टू कांग्रेसमैन ऑफ ऑल वेराइटीज, सीनियर्स एंड न्यूकमर्स. He is not ready to become the Congress president by any means. This message needs to be understood by one and all, and he must be left alone. The party must elect its new management and the country given an alternative and an opposition for democracy to thrive. This is the need of the hour. Congress party must come under new management and beyond the family, the fake Gandhis. आज के लिए इतना ही. अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कश्मीर के आगे के इतिहास की, कांग्रेस पार्टी के कहानी की, कांग्रेस पार्टी की भविष्य की. क्या होगा देश की सबसे पुरानी पार्टी का. जानेंगे अमेरिकी चुनाव के नतीजे और भारत अमेरिका के रिश्तों की. कई और तथ्यों के साथ फिर आऊंगा और मिल बैठकर चर्चा करेंगे आपके अपने प्रोग्राम वीकली टेक्स फ्रॉम न्यूयॉर्क में. हां, अगर आपको अपना प्रोग्राम अच्छा लगा, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले एपिसोड की सूचना आपको पहले मिल सके. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.